Hi everyone, it's me, your Manu Ishu. Welcome back to my YouTube channel, Manu Ishu ACCA classes. So in today's video, we are going to do section C, part of investment appraisal of Kaplan case of F9. So if you are watching my video for the first time, please subscribe to my channel and share it among your friends. But don't forget to hit the bell icon for more updates. Okay, so question is ARMCLIF company. Okay, and first let's read out what the question requirement is. So question have a three requirement. Let's read the first one. Determine whether the proposed capital investment is attractive to ARMCLIF using the average rate of return on capital method as defined as average profit to average capital employed ignoring receivable and payable. So basically question is asking कि जो proposed capital investment है that is attractive to ARMCLIF or not और किस method से हम लोग को analyze करना है whether it is attractive or not. We have to use a average ROCE और ROC को भी इन्होंने define कर दिया है. In formula what we have to use is the average profit to the average capital employed. ठीक है, उसके बाद चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज ARMCLIF company is a division of Shevin INC. जस्ट वेट, मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला जो उन्होंने बताया हुआ है ROC का, वी हैव टू यूज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, ओके. So ARMCLIF company is a division of Shevin INC which requires each of its divisions to achieve a rate of return on capital employed of at least 10% per annum. अब ये जो 10% है ना, it is the hurdle rate, means the target set by the management, कितना achieve करना है उसको hurdle rate भी कहते हैं. So if you are using the ROC and तो आपका decision criteria क्या होगा? It should be greater than hurdle rate, means ROC should be greater than hurdle rate, then you will accept the project, otherwise you will reject. ठीक है, so this helps us to determine our decision criteria. For this purpose, capital employed is defined as a fixed capital and investment in the inventories. So basically question में ये भी बोल दिया गया है what you need to take as a capital employed. Capital employed हमारा हो जाएगा, just wait, हाँ. Okay, so capital employed इन्होंने define किया हुआ है, we should take as a fixed capital, means non-current asset plus inventories. Okay. So next, this rate of return is also applied as hurdle rate. Question में बोल दिया for a new investment project. Division have a limited borrowing powers and all capital projects are centrally funded. ठीक है. The following is the extract from ARMCLIF divisional accounts. Statement of P&L and asset employed already has been given. Okay, so now तो हम लोग को कंपनी हम लोग को P&L अकाउंट दी हुई है, एसेट एम्प्लॉयड दी हुई है. ठीक है. So now ARMCLIF production engineer wish to invest in a new computer control press. Okay, इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है and the equipment cost is 14 million. It means initial investment and residual value is expected to be 2 million after 4 years of operation. तो बेसिकली हम लोग वन बाय वन करते जाते हैं. ठीक है, तो पहले सॉरी, तो बेसिकली पहले हमारा करंट ROC क्या है अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. What is our current ROC as per the P&L and asset employed figure given in the question? तो ये हमारा हो जाएगी. So we will take average profit for the year दिया हुआ है 20 divide by हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में लेना है फिक्स्ड कैपिटल which is non current asset, in our case 25 plus inventory and inventory is 25. ठीक है, so 0.2 and if we will convert this into percentage it will be 20%. ठीक है, so now proposed investment
ठीक है। सो नाउ हम लोग पहले कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 कॉमन दे देती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ, और यू कैन टेक ए डॉलर मिलियन एज ए कॉमन, ठीक है। तो अब ARMCLIF प्रोडक्शन इंजीनियर विश टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कंप्यूटर कंट्रोल प्रेस एंड द इक्विपमेंट कॉस्ट इज 14 million. It means and the residual value is expected to be 2 million after 4 years. तो ईयर कितना हो जाएगा हमारा, ईयर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विपमेंट कराती हूँ, इक्विपमेंट सॉरी इक्विपमेंट हमारा कितना इन्वेस्ट किया हम लोग ने, 14 million, which means 14,000, and आपका रेजिडुअल वैल्यू है 2 million, ठीक है। And when the equipment will be shipped to the customer in the South America, the new machine is capable of improving the quality of existing product and also the producing a higher volume. And firm marketing team is confident of the selling the increased volume by extending the credit period. मतलब अब जो हम लोग प्रपोज इन्वेस्टमेंट लेके आए हुए हैं टू इन्वेस्ट इन द इक्विपमेंट का रेसिडुअल वैल्यू इज 2 million आफ्टर 4 years, इसके वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्प्रूविंग विच विल इंक्रीज आवर सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। एंड सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि okay sorry, and film marketing team also confident है कि वो selling confident of selling the increased volume by extending the credit period. It means volume increase करने के साथ साथ वो लोग credit period भी extend कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा equipment हो गया 14,000। उसके बाद expected additional sales are this and sales volume is expected to fall over time due to emerging competitive pressure. Competition will initiate the reduction in price by 0.50 each year from the 5 per unit proposed in the first year. Operating costs are expected to be steady at $1 per unit, and allocation of overhead by the central finance department is set at 0.75 per unit. Higher production level will require additional investment in the inventory of 0.5 million, which would be held at this level until the final stage of the operation of the project. Customer at present settle account after 90 days on average. Okay. तो अब बेसिकली हम लोग नए प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं। वी विल ओनली टेक दोज थिंग्स इन आवर कंसिडरेशन जो हमारे ये प्रोजेक्ट के करने की वजह से एडिशनल हो रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल नहीं लेंगे। तो प्रोडक्ट को ये प्रोजेक्ट को करने से, मैंने प्रोडक्ट बोल दिया शायद ये प्रोजेक्ट के करने की वजह से हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है और सेल्स प्राइस भी फॉल हो रहा है 0.50 ईच ईयर से। हमारा एडिशनल इन्वेंट्री भी मतलब इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ओके। तो सेल्स कितना से इंक्रीज हुआ हमारा, फर्स्ट ईयर में 2000 से फिर 1800 1600, ये एडिशनल सेल्स है और ये डिक्रीज भी हो रहा है, नीचे बोला गया है सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू फॉल ओवर टाइम, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस आपका ये भी बोला हुआ है रिडक्शन इन द प्राइस बाय 0.50 ईच ईयर फ्रॉम 5 पर यूनिट प्रपोज इन द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में 5 प्रपोज किया गया था, ठीक है। एंड ये डिडक्ट होते गया 0.50 ईच ईयर ठीक है। तो नाउ रेवेन्यू कितना आया होगा हमको तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल हैव आवर रेवेन्यू 10,000 इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ में भी आ गया। सो नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट
ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कितना बोला हुआ, 1 पर यूनिट। सो 1 पर यूनिट हमारा कितना है, 2000 है फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, आ गया। उसके बाद ओवरहेड, अब जो कि हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करते हैं आरओसी में, तो ओवरहेड भी देखेंगे। अगर ये लाइक एनपीवी वगैरह होता है तो ओवरहेड को इग्नोर करते हैं हम लोग, है ना। तो इट इज 0.75 पर यूनिट एंड आवर यूनिट इज 2000। ये हो गया। तो हमारा इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेते हैं, पीवीआईटी या फिर मैंने एक लाइन छोड़ा हुआ है, मैं बताऊंगी किसके लिए छोड़ा है, जस्ट वेट। ठीक है, कॉपी शीट पेज, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारा ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ से एवरेज एवरेज सीधे फॉर्मूला डालो, ARAGE एंड सिलेक्ट द सेल्स। ये हमारा हो गया प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब नाउ हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आरओसी फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए, वी हैव टू टेक द फिक्स्ड कैपिटल बोला है, ठीक है, एंड इन्वेंट्रीज, यही बोला है ना क्वेश्चन में लेने के लिए। सो नाउ फिक्स्ड कैपिटल, अब इस प्रोजेक्ट के लेने की वजह से हमारा एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है, ईयर शुड बी सेम, ठीक है, जो ऊपर है वही रहने दो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल हमारा कितना मतलब लग रहा है इस प्रोजेक्ट वैसे हम लोग को इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा एंड द अमाउंट इज 14 मिलियन। तो 14,000 ये 30 कॉमन लिया। अब जो कि एक सेकेंड है, स्पेस छोड़ना पड़ेगा। अब जो कि डिप्रिसिएशन में तो चार्ज होगा ना इस पे, तो डिप्रिसिएशन इसलिए मैंने ये लाइन छोड़ा है डिप्रिसिएशन के यहाँ पे। डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमारा 14,000 लगा, -5,000, 2 मिलियन इज आवर रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाई 4। ये 3,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है एंड ये 4 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हमारा ये मैंने इसमें क्या लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अब घटेगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हमारा ऑब्वियसली वैल्यू घटेगा। इसमें 11,000 आ जाएगा, फिर 8,000, फिर 5,000, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज बोला है, एडिशनल कितना लगेगा हम लोग को, 0.5। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में 0.5 बोल रखा है, एडिशनल इन्वेंट्री हम लोग को लग सकती है। तो 500 फर्स्ट ईयर के लिए 3 0 कॉमन लेने के बाद एंड ये हो जाएगा हमारा। सो ऑन एन एवरेज अगर करें तो टोटल पैल निकालते हैं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, CE। इसका एवरेज लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज कितना आ गया, 10,000। अब हम लोग ROC फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड आवर वैल्यू ROCE। तो हम लोग सिंपल लेंगे एवरेज प्रॉफिट जो निकाला, ये रहा हमारा, एंड डिवाइड कर देंगे हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 इन आवर केस, एंड इसको परसेंटेज में बदल दो। तो ये पॉइंट में कुछ आएगा। अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या लिखोगे, कमेंट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस द ROC ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द हर्डल रेट हमारा कितना है, विच इज 10%, उससे ज्यादा है तो वी शुड फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट, है ना। ये भी मेंशन करोगे आप कमेंट में। अब
तो आरओसी ये डिसीजन क्राइटेरिया है आरओसी का कि इफ इट इज ग्रेटर देन हर्डल रेट देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। बट इस केस में एक बार आप ये भी देखो उसका करंट आरओसी कितना है 20%। तो अगर ये प्रोजेक्ट लेगा जिसका आरओसी 14.6% है तो इसका आरओसी डिडक्ट हो जाएगा। एवरेज करके देखो एक बार, इसका आरओसी जो करंट आरओसी है उससे नीचे आएगा। तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस कंपनी करंट आरओसी इज दिस आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्ट इट विल बी डिडक्टेड। ये भी चीज मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। So now next question is suggest 3 problems which arise with the use of the average return method for appraising a new investment। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आरओसी यूज करने के लिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती है, ये कैश फ्लो बेस्ड नहीं है, प्रॉफिट बेस्ड है विच इज सब्जेक्टिव। उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत सारे टेक्निक लाइक क्रिएटिव अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, इस टाइप का कुछ करके मैनिपुलेट करके प्रॉफिट जितना बढ़ाएंगे आरओसी उतना अच्छा दिखेगा। है ना। दूसरा आप ये लिख सकते हो ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट का इग्नोर करती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसका लेंथ 5 इयर्स है, एक प्रोजेक्ट है उसका लेंथ 4 इयर्स है, बट दोनों का प्रॉफिट सेम है। तो एवरेज करने पे दोनों का ये प्रॉफिट सेम ही आएगा, है कि नहीं। तो लेंथ को कंसिडर नहीं करेगी, तो ऑन एन एवरेज ये लेंथ को इग्नोर करती है। दैट्स व्हाई ये भी आप मेंशन कर सकते हो। और थर्ड क्या लिख सकते हो लाइक फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मेंशन कर दिया कि ये फॉर्मूला यूज करना है, तो किसी और से कंपेयर करना हो सके, वो इंडस्ट्री या वो कंपनी कोई और फॉर्मूला यूज कर रही हो तो, है कि नहीं। तो ये भी एक लिख सकते हो कि इट हैज वेराइटी ऑफ फॉर्मूला, मतलब वो भी लाइक एक रॉन्ग डिसीजन देने पे मतलब ले सकते हो उसके कारण, ये अगर फॉर्मूला डिफरेंट है तो, है कि नहीं। ये भी मेंशन कर सकते हो। और क्या लिख सकते हो, हाँ अब ये भी लिख सकते हो डिसीजन क्राइटेरिया ऑब्वियसली हर्डल रेट पे बेस्ड है। हर्डल रेट जो मैनेजर सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन द व्यू ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ARR मेथड व्हाई डू कंपनी कंटिन्यू टू यूज इट इन द प्रोजेक्ट अप्राइजल। तो इसमें क्या लिखोगे, बेसिकली हम लोग को एडवांटेज दिखाना है अब ARR का। ARR मतलब ROCE। तो अब इसमें ये लिखोगे कि ये सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट, अंडरस्टैंड। जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ना उनको भी लाइक आ जाएगा। सपोज दैट हम लोग ACCA पढ़े तो हम लोग ने ये चीज देखा, बट कोई मैनेजर लाइक मतलब कोई प्रोफेशनल डिग्री लिया है तो उनको बस ये आरओसी कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से लेते हैं हम लोग, PL से। और दूसरा कैपिटल इम्प्लॉयड कहाँ से लेते हैं, SOP से। तो बेसिकली जस्ट हम लोग को फिगर लेना है और तक तक चल के फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मैनेजर उस SOP से एंड PNL से फैमिलियर होते हैं, है कि नहीं। तो इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इनफैक्ट ये इजी टू कैलकुलेट भी है कि नहीं। दूसरा एक परसेंटेज में देता है कितना परसेंट हम लोग रिटर्न पाएंगे, इतना वो मीनिंगफुल है कि नहीं। जैसे कि लाइक आपको मैं कैसे बताऊं, सपोज अगर मैनेजर का परफॉर्मेंस बोल दिया गया है कि आप इतना परसेंट रिटर्न करोगे, मैं आपका इतना प्रॉफिट, इतना लाइक इतना से बड़ा आपका सैलरी इतना परसेंट इंक्रीज होगा। एक परसेंटेज फिगर देकर तो उसको भी लाइक इजी होगा ना कि मतलब हाँ इतना अचीव करना है। तो ओवरऑल मतलब ये परसेंटेज होने का एक मीनिंगफुल है। जो नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी है ना उनके लिए ये इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि लाइक कितना परसेंट हमारा ये रिटर्न मिलेगा नहीं। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा ये और क्या लिख सकते हो, काफी है 3 मार्क्स के लिए। आई थिंक एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। एंड लास्ट बोल रहा है ब्रीफली डिस्कस द डेंजर ऑफ ऑफरिंग मोर जेनरस क्रेडिट। अब जैसे कि क्वेश्चन ने बोला कि सेल्स इंक्रीज होने की वजह से उनका क्रेडिट पीरियड भी इंक्रीज कर दिया जा रहा है। यहाँ पे 22 दिन क्रेडिट पीरियड। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको मतलब डेंजर सिचुएशन क्या क्या है उसका लिख सकते हो। ऑब्वियसली बैड डेथ होगा, और क्या हो सकता है एक लाइक आपके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, कैश टाइम पे नहीं आया। ये सब चीज को आप मेंशन करके लिख सकते हो। FME पढ़ा है, MME सब पढ़े होंगे। तो आई थिंक ये थ्योरी पार्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, अगर आपको लगे कि आपको अपना आंसर चेक करवाना है, मैंने सही किया है कि गलत, जस्ट सेंड मी दोस फाइल ऑन माय मेल, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लोग वार्डन कंपनी का। तो तब तक स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, so bye, take care, have a good day.